Good morning, students. Welcome to our new session. Today we are going to start a new lesson in unit number 4. The name of this lesson is The Ashes That Made Trees Bloom. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog who lives in Japan in 19th century. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. This couple's only companion was a little pet dog. His name was Muko. They loved it as if it were their baby. उन्होंने अपना एक पेट डॉग पाल के रखा था, उसका नेम था मुको। दोनों ही जो कपल थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो अपनी बेबी की तरह वो मुको को चाहते थे। दे गेव इट पीसीज ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस टू ईट। मुको ऑल्सो लव्ड इट्स नोबल master. So let's begin this lesson. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet dog was a little dog, having no children. I just have told you that that couple has no children. They loved it as though it were a baby. और वो अपने कुत्ते से अपने बेबी की तरह प्यार करते थे. The old dame made it a cushion of blue crab, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. अब वो जो कुत्ता था, उस कुत्ते को ये जो कपल है वो बच्चे की भांति प्यार करते थे. उसे मछली के टुकड़े तथा उबले चावल खाने को देते थे. मुको भी अपने नेक मालिक से बहुत प्यार करता था. वृद्ध व्यक्ति चावल उगाने वाला जो किसान था, वह अपने फावड़े से सारा दिन परिश्रम करता था. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into fields, working hard from morning until Otento Sema, means as the sun is called, had gone down behind the hills. उसके पीछे उसी स्थान पर जो कुत्ता था वो उसके मालिक के पीछे पीछे जाने लगा. प्रतिदिन ऐसे ही पीछे पीछे खेत पर जाया करता था. वह सफ़ेद रंग के जल पक्षी जो बगुले को जो कीड़े खाता था और कोई चोट नहीं पहुंचाता था. वह किसान जो था वो सभी जीवों के प्रति सहृदय था. एक दिन कुत्ता जो था वो दौड़ता हुआ मालिक के पास आया. उसने किसी स्थान पर चलने का इशारा किया. Had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. क्या करता था? सभी जीवों के प्रति सहृदय था, इसीलिए वो सबको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए भी देता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक बार क्या हुआ तो कुत्ता उसकी तरफ, उसके मालिक की तरफ दौड़ता हुआ आया. उसने पीछे किसी स्थान पर चलने का इशारा किया. With his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. अब जो वृद्ध था उसे तो ऐसे लगा कि ये जो डॉग है वो जस्ट प्ले कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. पर जो कुत्ता था वो वहाँ से खिसका नहीं जब तक उसका जो मालिक है वो उसके पीछे पीछे नहीं गया. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर क्या हुआ तो जो वृद्ध था वो उस कुत्ते के पीछे गया, मुको के साथ उस स्थान पर गया. कुत्ता वहाँ ज़मीन को खुरचने लगा.
फिर वृद्ध ने उस स्थान को कस्सी से खोदा, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बॉन और बिट ऑफ फिश. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him. पहले तो उसको क्या लगा कि ये ज़मीन के अंदर कुछ नहीं होगा, या तो फिश का एक टुकड़ा होगा या तो कोई बरीड बॉन हो सकता है. बट वहाँ उसे जब उसने खोदा, ज़मीन खोदी, कस्सी से ज़मीन खोदी, वहाँ उसे ढेर सा सोना मिल गया. नेक्स्ट पेज. Thus in an hour the old couple were made rich. ऐसे ही वो जो ओल्ड कपल था वो अचानक से धनवान हो गए. उन्होंने खेत खरीदे. द गुड souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. वैसे ही उन्होंने खेत खरीदे, मित्रों को भोजन करवाया, गरीब पड़ोसियों जो थे उनकी भी आर्थिक मदद की. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब क्या हुआ, तो उसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था. वे सभी कुत्तों के प्रति कठोर थे. जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के सौभाग्य की बात सुनी, वो इतने अनकाइंड थे कि जब कोई कुत्ता उनके घर आगे से भी जब पास होता तो उनको भी वो लोग मारते, स्कोल्ड करते. अब अचानक से उन्होंने एक बार ये बात सुनी. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बीट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. फिर क्या हुआ, तो वो जो अनकाइंड कपल थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो ये कुत्ता था उसके लिए खाना दिया, अच्छी अच्छी मछली पेश की, उन मुक्को को अपने बगीचे में बुलाया, क्योंकि उन्हें ये आशा थी कि मुक्को उन्हें भी खजाना खोज देगा. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. But जो एनिमल्स होते हैं वो रियली बहुत ही क्लेवर होते हैं. जो कुत्ता था, जो मुक्को था, वो उसने कोई मछली खाई नहीं, क्योंकि वो डर रहा था, बिकॉज वो जो कपल थे वो बहुत ही क्रूअल थे. तो उसने खाया तो नहीं, मछली खाई तो नहीं, पर वहाँ पे वो कुत्ता जो है वो गया भी नहीं. Coaxed. What is the meaning of coaxed? Coaxed means pursued, enticed. Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with them. फिर क्या हुआ, तो कुत्ता उन्हें बगीचे में उगे एक चिड़ के वृक्ष के नीचे ले गया. मूर्ख बूढ़ा खुशी से नाचने लगा. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. Quick wife, hand me the spade and hoe. वो तो जो मूर्ख जो था बूढ़ा, वो तो खुशी से नाचने लगा. वह ज़मीन खोदने लगा. उसकी वाइफ को बोला कि वाइफ जल्दी करो मुझे स्पैड दो. Cried the greedy old fool as he danced with joy. और वो ज़्यादा से ज़्यादा greedy बन रहा था, लालचू बन रहा था. Then he covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. Here what is the meaning of covetous? Covetous means greedy. फिर वो जो greedy old person था वो ज़मीन खोदने लगा, पर उसे तो वहाँ गड्ढे में एक मरी हुई बिल्ली मिली. Began to dig, but there was nothing but a dead kitten. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब वो बिल्ली जो थी वो मरी हुई थी, इसीलिए उसमें से बहुत ही फाउल स्मेल आ रही थी. इसलिए उन्होंने क्या किया, तो वो उनके हाथ में से स्पैड गिर गई और अचानक से उन्होंने अपना जो नोज़ था वो कवर कर लिया.
Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. अब क्या हुआ तो दैट ओल्ड मैन बिकेम वेरी एंग्री एंड क्रोधावेश में आकर उन्होंने मुको को पीट कर जान से मार दिया. And the old man finished the work by nearly chopping off his head with sharp hoe. उसके हाथ में जो शार्प हो थी उससे उसका जो सर था वो चॉप कर दिया एंड उसे मार डाला. They then flung him into the hall and heaped the earth over his carcass. फिर क्या हुआ तो जब वो जो ओल्ड कपल था, ग्रीडी कपल था, उन्होंने वो कुत्ते को ज़मीन में डांट दिया. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. अब क्या हुआ तो जब मुको के मालिक को अपना प्रिय पालतू कुत्ते के बारे में जब पता चला, उसकी मौत के बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हीज ओन चाइल्ड. और जैसे अपना चाइल्ड हो, अपना बच्चा हो, वैसे ही उन्होंने कुत्ते की मज़ार पर फूल और जल अर्पित किए. व्हेन एट नाइट अंडर द पाइन ट्री ही सेट अप सम bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. क्या किया तो उन्होंने अपने कुत्ते की मज़ार पर फूल और जल अर्पित किए. उस रात को मुको की आत्मा वृद्ध किसान को सपने में दिखी. उसने कहा कि जो चीड़ वृक्ष उसकी कब्र के ऊपर उगा है उसे काट दो. उससे प्राप्त सामग्री से चावल की पेस्ट्री तथा चटनी बनाने की चक्की बनाओ. किसान ने दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. Here you can see in this picture also that old man was sleeping and he saw a dream. उसने क्या बोला तो उसने बोला कि उसने कहा कि जो चीड़ वृक्ष उसकी कब्र के ऊपर लगा है. Here you can see in this picture this one. दिस इज़ अ पाइन ट्री. ये उसकी कब्र है. उसने बोला कि उसकी कब्र के ऊपर जो चीड़ वृक्ष है उसकी कब्र के ऊपर उगा है उसे काट दो और उससे जो सामग्री प्राप्त हो उससे चावल की पेस्ट्री तथा चटनी बनाने की चक्की बनाओ. किसान ने वृक्ष के तने में एक खोखली जगह बनाई. उस लकड़ी के उन्होंने चावल कूटने हेतु एक हथौड़ी बनाई. उन्होंने पेस्ट्री पकाई. अचानक वहाँ गुंदा हुआ आटा स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया. So the man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. Now remaining lesson we will discuss in our next period. Thank you everyone. Bye. Have a nice day.